Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, today I am here with worksheet 2. So, as you all know, that we have started the syllabus of internal assignment 2, and yesterday we had started lesson 4, and the name of the lesson is determiners. So before starting today's work, what you have to do, you have to mention today's date in your copies, that is 21 July 2020. You have to mention online classwork in your copies, and you have to mention lesson 4 in your copies. So as you all know that yesterday we had started lesson 4 and we have done the definition of determiners in our worksheet 1, and in worksheet 2 we will do the exercises of determiners. So let's see what is the first exercise. Here is written, fill in the blanks with articles, possessives and demonstratives. So what we have to do, we have to fill in the blanks with articles, possessives and demonstratives. So these all are the types of determiners, as I have explained everything in my explanation video of lesson 4, that what are the types of determiners. So let's see. Here is written, first one, dash apple a day keeps dash doctor away. We have filled an apple a day keeps the doctor away. Here apple is a noun, here day is a noun, and here doctor is a noun. And an is referring to apple, a is referring to day, and the is referring to doctor. So apple starts with a, which is a vowel, and the things which starts with a vowel we use a and n with them. Day starts with a consonant, so we have used a with it, and the doctor is a particular person, so we have used the with it. Okay, so that's why it is clear that they are articles. I have told you the use, and they all are referring to a noun only. इट इज़ अ पॉपुलर सेइंग कि अगर आप दिन में एक सेब खाते हैं रोज़ाना तो वो आपको डॉक्टरों से दूर रखता है, मीन्स आपकी जो सेहत होती है उसको अच्छा रखता है. Let's see the second one. Dash flowers in the shop across the street are for sale. So here those is referring to flowers, एंड फ्लावर्स इज़ अ नाउन. फ्लावर्स जो है वो नाउन है, फूल, और दोज किसको रेफर कर रहा है, फ्लावर्स को. फ्लावर्स प्लूरल है, दैट्स वाई हेयर इज रिटन दोज. अब नाउ आई हैव एक्सप्लेन यस्टरडे, सो व्हेन द थिंग इज क्लोज टू अस वी यूज दिस विद दैट विद द थिंग, एंड व्हेन द थिंग इज far from us we use that with the thing. So just happens in these and those also. If the plural thing is close to us we will use these, and if the plural thing is far from us so we will use those. So here it is written, दोज फ्लावर्स इन द शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, मीन्स सड़क के उस पार जो फ्लावर्स हैं वो सेल के लिए हैं, वो बेचने के लिए हैं. अब सड़क से उस पार हैं, दैट मीन्स दे आर फार फ्रॉम अस. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने दोज का यूज़ किया है, और ये फ्लावर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव. Let's see the third one. He is very organized. He has made his plans for the next 5 years. वो बहुत organized है, उसने अपने अगले 5 साल तक के plans बना लिए हैं. plans जो है वो noun है, और यहाँ पर his हमें बता रहा है कि किसके plans हैं, उसके plans हैं. his हमारा क्या आया, possessive, जो he के according लगा यहाँ पर. he means वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, और प्लान किसके हैं, उसी बॉय के, दैट्स वाई यहाँ पर हिज आया. सो हिज ने क्या किया, पोजेसन बताया. सो ये क्या हो गया आपका पोजेसिव डिटरमाइनर. लेट्स सी द फोर्थ वन. माई आंट बॉट एन एक्सपेंसिव क्रॉकरी सेट फॉर द पार्टी. मेरी आंटी ने एक महंगा क्रॉकरी सेट खरीदा पार्टी के लिए. क्रॉकरी सेट सभी को पता है, इट कंटेन्स यूटेंसिल्स टू ईट, जो एक प्रॉपर सेट होता है जिसमें खाने के बर्तन होते हैं सारे. सो वो एक्सपेंसिव था. एक्सपेंसिव इज स्टार्टिंग विद ई, so that's why we have written a and n here, because e हमारा vowel होता है. so n किसको रेफर कर रहा है, expensive को कर रहा है यहाँ पर. so that's why it is article. Let's see the fifth one. दिस डॉक्यूमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड एडवाइज़ यू टू कीप इट सेफली. ये डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उसे सुरक्षित रखो. डॉक्यूमेंट हमारा नाउन है, और दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट को. डॉक्यूमेंट इज़ क्लोज टू अस, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दिस. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स. लेट्स सी द सिक्स वन. आई ऑर्डर द फूड बिकॉज इट वॉज द ट्रीट ऑफ माई बर्थडे. मैंने खाना ऑर्डर किया क्योंकि ये मेरे बर्थडे की ट्रीट थी. सो बर्थडे इज़ अ नाउन. हेयर इज़ इट शोइंग दैट
मेरा बर्थडे है, सो माई क्या दिखा रहा है, पोजेसन दिखा रहा है विद द नाउन, सो इट इज पोजेसिव डिटरमाइनर. Let's see the next exercise, that is fill in the blanks with appropriate distributives, quantifiers and interrogatives. क्या करना है? We have to fill in the blanks with distributives, quantifiers and interrogatives. In the last exercise, we have filled the sentences with 3 types of determiners, and in this exercise, we will fill the sentences with the other 3 types of determiners. All types of determiners I have explained in my explanation video. There are 6 type of determiners. So if you are having any kind of confusion, so you can see the video again. So let's see the first one. Here is written either candidate is suitable for the part. So I have told you in the explanation video the same sentence, that either is used when we are having an option between 2 person और more than 2 person. अगर हमारे पास चॉइस होती है 2 लोगों में से चूज़ करने के लिए या 2 से ज़्यादा लोगों से चूज़ करने के लिए, तब हम either का यूज़ करते हैं. either मीन्स होता है कोई भी एक. सो हेयर कैंडिडेट इज़ अ नाउन, प्रतिभागी, प्रतियोगी, यानी कोई भी प्रतियोगी जो है वो इस पार्ट को करने के लिए सूटेबल है. क्लियर? सो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव. नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक सम चीज़ इन माई ऑमलेट. मुझे अपने ऑमलेट में कुछ चीज़ चाहिए. चीज़ क्या है? नाउन है. एंड हेयर सम इज टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ चीज़. सो क्वांटिफायर्स क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं. सो दैट्स वाई सम इज क्वांटिफायर. क्वांटिफायर डिटरमाइनर है. क्या कर रहा है? नाउन की क्वांटिटी बता रहा है. ओके, लेट्स सी द थर्ड वन. Here is written which girl has been chosen for this role. कौन सी लड़की इस रोल के लिए सिलेक्ट की गई है, चूज़ की गई है. सो हेयर गर्ल इज़ अ नाउन. तो इफ़ वी विल गेट द आंसर, सो वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल ओनली. यहाँ पूछा है कौन सी लड़की चुनी गई है. when we will get the answer, so we will get the name, we will get to know the name of the girl, we will get to know other things about the girls. तो हमें इन केस क्या हो रहा है, वी आर गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो दैट्स वाई विच इज़ interrogative determiner, and it is asking question also, as I already explained that interrogative determiners are used to ask questions. So let's see the fourth one. Here is written we have to save every penny for a trip to कोलकाता. हमें अपनी हर पाई मीन्स हर पैसा बचाना होगा, सेव करना होगा, सुरक्षित करना होगा हमारे कोलकाता के ट्रिप के लिए. सो एवरी इज हेयर डिस्ट्रीब्यूटिव. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डिस्ट्रीब्यूटिव कैन रेफर a particular member of a group also, and it can refer to the whole group also. एक पूरे ग्रुप को भी रेफ़र कर सकता है और ग्रुप के किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी रेफ़र कर सकता है. तो यहाँ वो हर पैनी को रेफ़र कर रहा है. मीन्स आप जितने भी पैसे अर्न करोगे तो आपको हर पैसा बचाना है. ओके, एंड पैनी इज़ अ नाउन. यहाँ पैनी हमारा पैसे के बारे में बात कर रहा है. So let's see the next one. Fifth here is written I usually have a little bit of pickle in my lunch. मैं अक्सर अपने लंच यानी दोपहर के खाने में बहुत कम पिकल लेता हूँ. पिकल मीन्स होता है अचार. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्वांटिफायर टेल द क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ अ नाउन. इफ़ अ नाउन इज काउंटेबल सो दे विल टेल द नंबर. इफ़ अ नाउन इज अनकाउंटेबल सो दे विल टेल द क्वांटिटी. सो हियर पिकल इज अ नाउन एंड पिकल इज अनकाउंटेबल. मोस्ट ऑफ द ईटेबल थिंग्स विच वी ईट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द ईटेबल्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सम. सो पिकल इज एन अनकाउंटेबल नाउन. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अ लिटिल बिट. अ लिटिल बिट मीन्स होता है बहुत कम, और यहाँ पर ये मात्रा बता रहा है, पिकल की मात्रा बता रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वांटिफायर डिटरमाइनर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हेयर इज़ रिटन हाउ मच डू दीज बनानास कॉस्ट. ये बनानास का कॉस्ट क्या है, कितने महंगे हैं, क्या प्राइस है. सो व्हेन वी विल नो द आंसर, सो वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट बनानास ओनली. बनानास का प्राइस पता चलेगा. सो हाउ मच इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑल्सो, एंड इसके ज़रिए हमें क्या करेंगे, वी विल गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. सो दैट्स वाई इट इज़ इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर. So let's see the next exercise. Exercise 3. Here is written underline the determiners in these sentences and write their types. What we have to do? First we have to underline the determiner in the sentences, and then we have to write the types of the determiner. So let's see the first example. Here is written I would meet you a few days later. मैं तुमसे मिलूँगा कुछ दिन बाद. लेटर मीन्स होता है बाद. हेयर डेज इज़ अ नाउन, और डेज की क्वांटिटी क्या है, अ फ्यू. अ फ्यू मीन्स बहुत कम दिन बाद. सो यहाँ पर हमें नंबर्स पता चल रहे हैं नाउन के. दैट्स वाई इट इज़ क्वांटिफायर. अ फ्यू इज़ क्वांटिफायर डिटरमाइनर.
Let's see the next one. Here is written, you have several new dresses to wear in this party. So you have several new dresses. Dresses is a noun and several is telling the number of dresses, because dress we can count, it is countable noun. and several का पता चल रहा है अनगिनत, indefinite number है, means हमें clear नहीं है how many numbers are there to wear in this party. So several, first determiner is several and several is telling the quantity of dresses, कितनी dresses हैं, अनगिनत dresses हैं. and another is party, और party को indicate कौन कर रहा है, this क्या कर रहा है, party को indicate कर रहा है, तो that's why it is demonstrative. so several हमारा क्या है, quantifier determiner, और this क्या हो गया हमारा demonstrative. Let's see the second sentence. Here is written, the monuments of Delhi are known for their beautiful architectural designs. जो monument हैं दिल्ली के, जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो किस लिए जानी जाती हैं, अपनी architectural designs यानी अपने beautiful architectural designs के लिए जानी जाती हैं. Here monument is a noun यानी ऐतिहासिक इमारतें. So the किसको रेफर कर रहा है, monuments को रेफर कर रहा है. Why we have written the, because monuments of Delhi, ये एक particular noun हो गया, ये एक proper noun हो गया. कहाँ की इमारतें, दिल्ली की इमारतें. So the हो गया. Second है हमारा, here is written there. so there क्या है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसका है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली का. तो देयर ने क्या बताया कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसका है, मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली का. तो देयर ने हमें क्या बताया, पोजेसन बताया. सो दैट्स वाई द हो गया हमारा आर्टिकल एंड देयर हो गया हमारा पोजेसिव. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हियर इज रिटन, विच बैग हैज़ बीन स्टोलन. कौन सा बैग जो है वो यानी चोरी हो गया था. सो बैग इज़ अ नाउन, और विच किसको इंडिकेट कर रहा है, बैग को कर रहा है. इफ वी विल गेट द आंसर, सो वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बैग ओनली. सो विच इज़ इंट्रोगेटिव डेटरमाइनर. लेट्स सी द फोर्थ वन. फोर्थ इज हेयर रिटन, ईच ऑफ आर आंसर वर करेक्ट. यानी हमारे जो भी आंसर्स थे वो करेक्ट थे. सो ईच ऑफ आर आंसर मीन्स हमारा हर आंसर, हमने जितने भी आंसर दिए, आंसर इज़ अ नाउन, और यहाँ पर ईच किसको रेफर कर रहा है, हर आंसर को रेफर कर रहा है. सो ईच क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया. और इसके अलावा आपका दूसरा क्या है डिटरमाइनर, इट इज़ आवर. आंसर किसके थे, हमारे आंसर्स थे. तो आवर ने क्या बताया कि हमारे हर आंसर जो थे वो करेक्ट थे. तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और आवर क्या हो गया हमारा, पोजेसिव हो गया. लेट्स सी द फिफ्थ वन. हियर इज रिटन, मैरी हैज़ बॉट दीज एप्पल्स, शी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ डजन ऑफ दैम अमॉन्ग द पुअर चिल्ड्रन. सो हियर we can see that Mary has bought these apples. Apples is a noun and these किसको demonstrate कर रहा है, apples को. apples plural है, that's why हमने यहाँ these का यूज़ किया है. apples हमारे close हैं तो हमने these का यूज़ किया. so these क्या हो गया हमारा, demonstrative हो गया. next आता है, she is distributing a dozen of, यानी कितने एप्पल्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बांट रही है. अ डजन यानी एक दर्जन. सो एक दर्जन हमें क्या बता रहा है, हमें क्वांटिटी बता रहा है. सो ये क्या हो गया हमारा, क्वांटिफायर हो गया. हमेशा याद रखिए क्वांटिटी से आपका क्वांटिफायर बनेगा. क्वांटिफायर विल टेल यू द नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. नेक्स्ट आता है, अ डजन ऑफ दैम अमंग द पुअर चिल्ड्रन. द पुअर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी, हम एक पूरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब हम उसके साथ दा लगा सकते हैं. हेयर पुअर मीन्स एक गरीब नहीं है, मीन्स गरीब बच्चों के बारे को बांट रही है. सो हमने क्या किया, यहाँ पर द लगा दिया. सो द हमारा क्या, तो दीज हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, अ डजन हो गया हमारा क्वांटिफायर एंड द हो गया हमारा आर्टिकल. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विच टेबल इन द रेस्टोरेंट डू यू वांट टू सिट एट. कौन सी टेबल पर रेस्टोरेंट की तुम बैठना चाहते हो. सो टेबल नाउन हो गया. इफ विल गेट द आंसर, सो हमें टेबल के बारे में ज़्यादा पता चलेगा. एंड द हो गया हमारा आर्टिकल, बिकॉज वो रेस्टोरेंट को रेफर कर रहा है कि हम एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो विच हो गया इंट्रोगेटिव एंड द हो गया हमारा आर्टिकल. So these were the exercises which you all have to do by today in your copies. Your handwriting must be very neat and clean, and one thing you all have to mention in your copies, that is your name and page number. When I am checking the pages, it is very difficult for me to finding that whose page is that, because a lot of students are there, those who are not mentioning their name, except Mahi only. I think Mahi has mentioned her name on the pages. Last time I have already told that whenever you are sending the work, mention the page number and your name on the page only. Okay, so that time only it will be easier for me to check.
So I hope all of you have understood the exercises, and you all have to do it in your copies. So I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.